Good morning to everyone. Once again, I am here before you all to start with our revision. Right? We have done some assignments, we have done some tests. Now I am picking up your first chapter, real numbers, for your revision test. Okay? Because as you know that your exams are coming from 27th, so you have to go through all three chapters thoroughly. What kind of MCQs can be asked, as well as do practice of 2, 3, 4 marks questions also. Okay, so I'm starting with MCQ type questions only, so that you will get to know what kind of questions can be asked and how to answer. Okay, so first question I am taking from first chapter, as we have studied Euclid lemma, which is now not in your syllabus, HCF LCM. So before proceeding further, I am taking few questions from HCF LCM and in between other topics also. So first question is, if D is equal to, if D is equal to HCF of 48 and 72, it is given, then value of D, the value of D is, क्या टफ है? नहीं, because only or simply he is asking if D is the HCF of these two digits, then what is the value of D. तो simply वो क्या पूछ रहा है, सिर्फ लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज कर दिया, डायरेक्ट नहीं पूछा कि 48 और 72 का HCF बताओ, वहाँ पर एक वेरिएबल पुट कर दिया विच इज D और पूछ रहा है कि उसकी वैल्यू बताओ. सो योर ऑप्शंस आर, A is 24, B is, here it is given 48, C is 12, and D here it is 72. It is 72. So tell me, what is the HCF of this 72 and what is the another number, 48. So here 48 और 72 का आपको HCF निकालना है, लेट्स सपोज. सो व्हाट इज योर प्रायोरिटी? आपको प्राइम फैक्टराइजेशन आना चाहिए, क्योंकि आपको जब MCQs लेने हैं या MCQs के आंसर्स देने हैं, यू शुड बी वेरी मच परफेक्ट इन फ्यू थिंग्स. द कैलकुलेशन शुड बी डन इन योर माइंड, और अदरवाइज कीप पेपर विद यू और जल्दी से उसको फैक्टर्स करके देख लो. जैसे हमने 48 के फैक्टर्स देखे, 48 is equal to what? 16 3s are 48, और 16 क्या होता है, 2 is power 4 into 3. 72 is 8 9s are 72, 8 9s are 72, so 8 is 2 is power 3 and 3 square is 72. हो गया. HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर विच इज कमिंग इन बोथ. तो दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 2 raised to power 3 here and 3 here. Right? Right? 2 raised power 4, 2 raised power 3 में which one is the highest? 2 raised power 3 कॉमन आ गया, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स आपको कॉमन फैक्टर लेना है जो सबसे बड़ा हो. राइट? सो 2 raised power 3 दोनों में सबसे बड़ा है. फिर इधर 3 और 3 स्क्वायर में जो कॉमन है और बड़ा है, कॉमन है तो 3 ही हुआ ना, 3 ही हुआ, so 3. So 2 to the 4 to the 8, 8 into 3 is 24. Your answer is 24. Option A is correct. Option A is correct. Now moving forward for next question. Now moving forward for next question. Question number 2. Here I am taking second question. If P and Q are two prime numbers, P and Q are two prime numbers, then LCM PQ is, LCM of PQ is, what will be the LCM? What will be the LCM? Least common multiple. Least common multiple आपको निकालना है, right? So least common multiple निकालने के लिए what we have to do? If P and Q are two prime numbers,
दोनों प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स आर दोस। ऐसे ही स्टेटमेंट्स पे ध्यान देना है आपको कि उसने आपको क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। पी और क्यू प्राइम नंबर से, तो क्या उसमें कुछ कॉमन होगा? नो, बिकॉज बोथ आर प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो अपने अलावा और कोई फैक्टर रखते ही नहीं अदर देन वन। या तो वन होता है या वो खुद अपने फैक्टर होते हैं, उसके अलावा उनका कोई और फैक्टर होता ही नहीं है, राइट? सो हियर आई एम राइटिंग पी और क्यू आर टू प्राइम नंबर्स। एलसीएम ऑफ पी क्यू इज, एलसीएम ऑफ पी क्यू फाइंड करना है इफ P and Q are prime। तो ऑप्शन इज, जल्दी से बताना मुझे, 1, A is 1, B is PQ, C is P and D is Q and D is Q। तो right answer will be what? Here right answer will be what? जो दोनों का कॉमन मल्टीपल हो। Yes, few are correct and few are wrong. I am giving you one example. 2 and 3 prime numbers हैं, 2 और 3 prime numbers हैं। इनका LCM क्या होगा? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। दोनों की टेबल में जो सबसे पहले आता है वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहलाता है, डोंट फॉरगेट, ठीक है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो डिवाइड कर सकता है उस नंबर को, और ये जो टेबल में मल्टीप्लाई करके आए, दैट इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लाइक 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8। अभी मैं आपको बहुत छोटी क्लास में लेके जा रही हूँ, just because of that few students are not understanding this concept, otherwise there is no need to explain this, but I am telling you so that कि आगे के लिए आपकी concepts clear रहें, right? So 3 के टेबल में 3 2 3, 3 2 6, 3 2 9। अब जहाँ मैंने देखा 6, अरे ये तो दोनों के टेबल में आ गया, इससे पहले कोई डिजिट इनके टेबल में कॉमन नहीं थी। 6 is the first digit which is common in both, that is called least common multiple। अब नहीं भूलना, अब नहीं भूलना। और ये कब आया? जब दोनों की मल्टीप्लाई होती है 2 3 के साथ, बिकॉज बोथ आर प्राइम नंबर्स। इनके अलावा इनका और कोई कॉमन मल्टीपल नहीं हो सकता। जैसे 2 और 4 हैं, दीज आर नॉट प्राइम, सो 2 के फैक्टर्स 2 and 1 हो गए, लेकिन 4 के फैक्टर्स 2 into 2 होते हैं, है ना? होते हैं ना? तो इनमें कॉमन 4 आ जाएगा, पहले 4 आ जाएगा। दोनों का मल्टीप्लिकेशन 8 तो बाद में आएगा, 4 पहले आ जाएगा दोनों के टेबल में, right? So this way if prime numbers are there, तो their product will be LCM, their product। अगर दोनों नंबर प्राइम है तो उनका प्रोडक्ट ही उनका LCM होगा। क्लियर? तो आंसर विल बी B। क्वेश्चन नंबर 3, like if LCM he is asking about HCF of 2 consecutive odd numbers or 2 consecutive even numbers, 2 consecutive 2 even numbers और 2 odd numbers। अगर उन consecutive numbers के वो LCM या HCF कुछ भी पूछ रहा है, so you must know how to find, क्योंकि आपके माइंड में होना चाहिए odd numbers है तो क्या है, इवन है तो क्या है, प्राइम के बारे में बात कर रहे हैं तो वो क्या है। अगर वो कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होंगे तो देयर इज नो नीड टू थिंक मोर, ठीक है? तो इन चीज़ों को बार बार पॉलिश कीजिए कि इवन नंबर्स होंगे तो ऐसे होता है, ये होगा तो ऐसे होता है। दिस वे यू विल डू योर प्रैक्टिस। नाउ वी आर कमिंग फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट टॉपिक। सो नाउ हियर आई एम टेकिंग न्यू कंसेप्ट, what kind of question can be asked, right, from the first chapter. This question I have written on the board. Just see, if two positive integers a b are written as a is equal to x cube y square and b is equal to x y cube, we have to find HCF of a and b। easy। यहाँ पर एक स्टेटमेंट मैंने नहीं लिखी है, which is x y are prime numbers, x and y are prime numbers, right? So now how to find the HCF of a and b, where
you have to know that what are the options like xy square, x cube y cube, x square y square. क्या ये क्वेश्चन टफ है? No. If your concept is correct, then no question is tough for you because HCF में निकालना क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. वो हमारे माइंड में बैठा रहना चाहिए कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या, which comes in the table first of all. Secondly, दोनों के टेबल में वो प्रेजेंट होना चाहिए, वो चाहे हमें कुछ भी दे दें, राइट? सो हमें यहाँ पर ए और बी का HCF निकालना है, ठीक है? और आपको HCF किसका निकालना है? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स क्यूब था बेटा, दिस वाज एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई क्यूब. ये दोनों हैं जिनका हमें HCF फाइंड करना है, HCF फाइंड करना है. सो डोंट थिंक कि मैं मतलब इतना बड़ा सोचूं, ऐसे मल्टीप्लाई करूं, वैसे मल्टीप्लाई करूं, कैसे करूं. नहीं, इतना इजी क्वेश्चन है, सिर्फ समझने की तरह. इन दोनों को देखो, एक्स क्यूब एक्स, दोनों में कॉमन और हाईएस्ट, कॉमन और हाईएस्ट. लेकिन हाईएस्ट का मतलब ये नहीं कुछ भी उठा के ले लो, कम से कम दोनों में कॉमन तो होना चाहिए. ओनली एक्स इज कॉमन इन बोथ, एक्स क्यूब नहीं, क्योंकि वो इधर नहीं आ रहा है. सो ओनली एक्स इज कॉमन. सो व्हाट इज कॉमन? एक्स. नाउ व्हाट अबाउट वाई? हियर इट इज वाई स्क्वायर, हियर इट इज वाई क्यूब. तो दोनों में कॉमन तो यही होगा ना, वाई स्क्वायर. सो द आंसर विल बी एक्स वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर. Getting? Yes. Now I am taking one more question accordingly. The value of x, the value of x in the factor tree is. मुझे नहीं लगता कि फैक्टर ट्री में किसी को भी प्रॉब्लम होगी. एवरीबडी नो टू. मैं फैक्टर ट्री देख करके भी बनाती हूँ कि कौन कौन सी वैल्यूज इसमें दी हुई है. 1 2 3 4 बॉक्सेस हैं. सबसे टॉप पर है x, उसके बाद आपको ये 3 बॉक्सेस और हैं. एट लास्ट इन दिस बॉक्स द वैल्यू इज गिवन 3. 3 is given. So here it is 2 and here it is 5 and it is also 5. क्या मुश्किल है x की वैल्यू निकालना? I told you earlier also. He has given the option. He has given the option 30, 150, 100, 50. उसके आंसर तो एकदम टिप्स पे आ जाते हैं. Yes, yes. So right answer is 3 2s are 6, 5 6s are 30, and this is 150. So answer is 150. So this is done. Now I am taking few other types of questions like the product of HCF LCM you have done already. आपको पता है कि कैसे करना होता है. एक दिया है, 2 चीज़ें दी हुई हैं, उसमें से एक फाइंड करनी है. यू कैन इजीली फाइंड आउट प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स. और HCF और LCM में से कोई एक दिया है तो यू कैन फाइंड द थर्ड वन easily. Now different type of questions arise that P and Q are the consecutive natural numbers. Consecutive natural numbers, अभी मैंने पीछे भी आपको बताया था. कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स भी हो सकते हैं, नेचुरल भी हो सकते हैं, कॉन्सिक्यूटिव ऑड हो सकते हैं, कॉन्सिक्यूटिव इवन हो सकते हैं. कॉन्सिक्यूटिव मतलब लगातार, x तो x प्लस 1, y तो y प्लस 1, 2 तो 3. सो दीज आर द कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स. अब उनका HCF क्या होगा अगर वो नेचुरल नंबर्स हैं, अगर वो नेचुरल नंबर्स हैं और कॉन्सिक्यूटिव हैं. देखा, यहीं पे कंसेप्ट काम आते हैं. लाइक अगर मैंने इस क्वेश्चन में कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स बोला है या कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स बोला है, तो एकदम आपके माइंड में क्या क्लिक करना चाहिए कि नेचुरल नंबर में पहला अगर ऑड है तो दूसरा इवन है. ऑड इवन, ऑड इवन, इस तरह से है कि नहीं है? कोई भी एक ऑड और इवन ले लेते हैं. लाइक 15 और 16 ले लिया मैंने. 3 के बाद 4 आता है, और अदर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग 7 और 8 आता है. उनके बाद 2 आता है, 23 के बाद 24 आता है. इन क्वेश्चंस को ध्यान से देख के मुझे ज़रा ये तो बताओ, व्हाट विल
B its HCF, highest common factor, highest common factor, none other than 1, none other than 1. Agree or not? Agree or not? फैक्टर्स ही कैसे होंगे? फैक्टर्स में प्रॉब्लम है. 3 5s are 15 और 16 के टेबल में ना 3 आएगा ना 5 आएगा. व्हाट इज कॉमन? 1. 3 1s are 3, 4 2 2s are 4. 3 के टेबल में कहीं से कहीं तक 2 नहीं आता, 4 तो आता ही नहीं, राइट? अगेन 7 8 23 24, 23 इज प्राइम. सो देयरफॉर अगर दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है तो ध्यान रखना है एक ऑड है एक इवन है. कॉन्जिक्यूटिव है ना तो नेचुरल में एक इवन एक ऑड होता है, राइट? सो दिस वे द आंसर इज 1, राइट? नाउ आई एम टेकिंग फ्यू मोर एग्जाम्पल्स related to chapter 1. Yes, this is the question related to relationship between HCF and LCM. What is the relationship? The product of HCF into LCM is equal to the product of digits, the given digits. Product of given digits. Relation is HCF into LCM is equal to given digits का product 26 into 19. ठीक है. अब इसमें से एक दिया हुआ है, दिस इज 13, LCM निकाल लेंगे. So LCM is 13 2s are 2 और 19 को मल्टीप्लाई करके you can find out the LCM. So रिलेशनशिप में भी दो चीजें आपको दी होंगी, थर्ड वन अपने आप निकल जाएगी, थर्ड वन अपने आप निकल जाएगी. देयर इज नो प्रॉब्लम, नो इशू, नो इशू. सो अगेन, if two positive integers, I am reading one question. If two positive integers a and b can be expressed as, a and b can be expressed as ab square, b is equal to a square b. When a b are prime numbers. Same question अभी किया है पीछे, सेम क्वेश्चन अभी किया है पीछे. a और b दोनों प्राइम है, एलसीएम निकालना है. एचसीएफ निकाल लिया था, बता दिया था मैंने आपको. इसको नोट डाउन करो रजिस्टर में और देखो एलसीएम ऑफ ए और बी क्या निकल के आता है. डोंट फॉरगेट एचसीएफ और एलसीएम में क्या फर्क है. इन एचसीएफ यू हैव टू टेक आउट कॉमन फैक्टर्स. एचसीएफ में कॉमन फैक्टर्स आते हैं, यहाँ आएगा कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल. तो इसमें आंसर हाईएस्ट वाला आता है, हाईएस्ट वाला, राइट? करते हैं इसको, करो और मुझे आंसर बताओ. एलसीएम ऑफ ए बी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर बी, जो इसमें भी है इसमें भी है और बड़ा है. जबकि एचसीएफ में सिर्फ और सिर्फ हम कॉमन हाईएस्ट फैक्टर लेते हैं, यहाँ मल्टीपल लेना है. तो इन दोनों में हाईएस्ट मल्टीपल ए स्क्वायर होगा और इन दोनों में हाईएस्ट मल्टीपल बी स्क्वायर होगा. तो आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, राइट? ए स्क्वायर बी स्क्वायर. कंटिन्यू विथ few more. Now these questions arise related to terminating, non-terminating, terminating, repeating, right? This way you have to find which kind of number is this, whether it is rational or irrational, right? यहाँ मैंने क्वेश्चन शॉर्ट लिखा है, मैं रीड कर देती हूँ. Which of the following rational numbers have non-terminating and repeating decimals? Non-terminating and repeating decimals. क्या बताया था मैंने? जिनके डिनोमिनेटर में 2n इंटू 5m फैक्टर्स होते हैं, वो नंबर्स फुल्ली टर्मिनेट हो जाते हैं, टर्मिनेटिंग होते हैं. टर्मिनेट हो जाएंगे तो रिपीटिंग का तो सवाल ही नहीं पैदा होता. या रिपीटिंग आ भी जाती है तो थोड़ी देर बाद रिपीटेडली अगर कोई डिजिट आती रहेगी तो वो टर्मिनेट होगा ही नहीं. सो यहाँ पर बात हो रही है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग. है तो रैशनल बट नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है. तो कौन सा है वो डिजिट जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है? तो सिर्फ हमें क्या चेक करना है,
कि डिनोमिनेटर में 2 रेस्ट पावर n इंटू 5 रेस्ट पावर m फैक्टर्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे, राइट? सो हियर वी हैव टू डू इन सच अ मैनर 1600 के फैक्टर्स बिल्कुल पक्का 2 रेस्ट पावर और 5 रेस्ट पावर में ही आएंगे, बिकॉज 100 के फैक्टर्स सबको आते हैं करने, 10 इंटू 10, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, ठीक है ना? 100 मतलब 10 इंटू 10 100, और 10 का करोगे तो 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 तो 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, 2 और 5 के फैक्टर्स आ रहे हैं। और 16 क्या है? 2 की पावर में 16 को लिखा जाता है, 2 2 4, 2 8, 2 16, 2 रेस्ट पावर 4 आ गया। अब 6 इट इज 2 इंटू 3 अदर देन 2 एंड 5 फैक्टर है इसके अंदर, सो इसका मतलब आंसर यही होगा, आगे जाने की भी जरूरत नहीं है हमें, बट फिर भी चेक करा देती हूँ आप लोगों को। 8 इट इज 2 क्यूब 15, 5 इंटू 10 यानी कि 5 स्क्वायर इंटू 2, 25 दूनी 50, 25 2 50, right? So here the factors are 5 into 2, 2 into 3 और ये भी पूरा 2, इसको भी लिख देती हूँ। कैसे कर, मैंने आपको शॉर्ट्स में कैसे बताया वो आपको सीखना पड़ेगा। 16 इंटू 100, 100 होते थे 10 इंटू 10, तो 2 रेस्ट पावर 2 और 5 रेस्ट पावर 2, 4 और 25, 100 हो गया ना, और 16 हो गए 2 रेस्ट पावर 4, तो हो गया 2 और 5 में फैक्टराइज। सो इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हुआ आपका बी, क्योंकि उसमें 2 के अलावा 3 शामिल है, विच शुड नॉट बी फॉर दिस, फॉर टर्मिनेटिंग, फॉर टर्मिनेटिंग इट शुड नॉट बी। सो इसलिए ये डिजिट हुआ आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछ लेती हूँ, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रैशनल नंबर विल टर्मिनेट आफ्टर, will terminate after the decimal expansion of the rational number 11 upon 2 raised to the power 3 or 5 raised to the power 2, 5 raised to the power 2, तो इसमें कितना डेसिमल एक्सपेंशन आएगा? दैट यू हैव टू आंसर मी, यू हैव टू आंसर मी। याद आया? ऑलवेज रिमेंबर, टर्मिनेटिंग आफ्टर दैट मैनी नंबर्स, जितनी आपके पास हाईएस्ट डिग्री दिख रही हो, 2 या 5 की, किसी एक की भी दिख रही है, जितनी उसकी हाईएस्ट पार है उतने ही तक वो टर्मिनेट होता है। ये 3 डेसिमल तक जाएगा बिकॉज हाईएस्ट पार इज 3, सो आंसर विल कम 3 डेसिमल प्लेसेस। इसके ऑप्शंस थे 1 डेसिमल प्लेस, 2 decimal place, 3 decimal place, more than 3 decimal places. Few questions I have collected for you from your book itself. Like if I will write one digit or the product of 2 digits which are equal, like एक क्वेश्चन और बना माइंड में कि अगर मैंने डिजिट ले ली 2 प्लस रूट 5 और 2 प्लस रूट 5, इनका प्रोडक्ट कर दिया, सो क्वेश्चन अराइजेस कि ये रैशनल है, होल नंबर है, इरेशनल है या नेचुरल नंबर है? नेचुरल नंबर। अगर तो दोनों प्रोडक्ट होने के बाद जितनी भी डिजिट्स हैं वो सारी रैशनल आ जाए तो रैशनल हो जाएगा, बट क्या आएगा प्रोडक्ट? दिस इज a प्लस बी होल स्क्वायर, बिकॉज a प्लस बी होल स्क्वायर बन रहा है ना, तो a स्क्वायर इज 4, b स्क्वायर इज 5 एंड 2ab, तो रूट 5 तो वहीं का वहीं रह गया। इरेशनल टर्म आ रही है, अगर इरेशनल टर्म है प्लस या माइनस में तो वो डिजिट हमेशा इरेशनल होती है, हमेशा इरेशनल होती है। सम ऑफ रैशनल प्लस इरेशनल इज इक्वल टू इरेशनल, sum of rational plus irrational is equal to irrational, don't forget. Okay beta, so I am moving forward and I am taking one more. Yes, the decimal expansion of the number, the decimal expansion of this number
I'm writing the number 13 upon 2 raised to the power of 3 into 5 into 7. बताओ जरा. Decimal expansion of the number. Your options are terminating. Digit देख लो. Terminating, non-terminating and non-repeating. Non-terminating but repeating. Terminating after 3 decimal places. अभी किया था क्वेश्चन. अभी non-terminating, repeating, because other than 2 or 5 the factor is 7 also present here. 7 is also present here, so therefore it is non-terminating repeating. Non-terminating repeating. 7 हटा दो तो क्या हो जाएगा? Terminating. Terminating. Now I am bringing few more questions to you. I am discussing few more. अब मैं थोड़ा सा multiple choice में नहीं जा रही हूँ. I am asking you ऐसे few questions like to obtain HCF of two positive integers C, D. If C is greater than D, we apply what? फिर से repeat कर रही हूँ. To obtain HCF of two positive integers C and D, where C is greater than D, we apply this. What is this? Euclid division lemma, algorithm. Euclid division lemma is the written statement, or here we are going to apply algorithm, क्योंकि the process by which we are going to get the HCF of C and D, that is Euclid division algorithm. Don't forget. I'm going to give you these questions in written, so आप उसको कर लेना, ठीक है? ऐसे मत सोचो कि मैम बस शॉर्ट में लिख रही है तो हमें मिलेगा कैसे. I will provide. Second, a number of the form P by Q. A number of the form of P by Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0, and P or Q is equal to 1. P and Q, sorry, गलत बोल दिया मैंने. A number of the form P by Q, where P, Q are integers, Q is not equal to 0, is called what? That will be rational number. That will be rational number. Only few questions I am writing on the board, and you just give me the answer. I will repeat after you, and then I will compute this class here only. Okay, I am writing 2 questions, so just give me the answer of these 2. First one is HCF of A and B into LCM of A and B is dash 2 A into B. Don't get confused, because this is again that formula. Yes, that is the right answer. HCF of AB and LCM of AB is equal to the product of the given 2 numbers. So this way you have to revise this chapter. I will send you the assignment and some activities, and you will enjoy to do this, so that you will be clear what kind of MCQs will be occurred in your exam. So I am computing here. Good day. See you in my next class. Bye.